previous lecture I want to explain the decay process. There are three types of decay process: alpha decay, beta decay, gamma decay. When a radioactive element having atomic number greater than 83, they undergo disintegration either by alpha, beta or gamma and converted into a stable element. In order to get stability zone, that of process is known as disintegration process. During alpha decay, the radioactive element emit alpha particle having atomic mass is equal to 2 and atomic number is equal to 2, atomic mass is equal to 4, that is helium nuclei. And during beta decay process, the radioactive element undergo disintegration and emit either electron or positron in order to get stability. In these two type of process, the radioactive element emit particles, but in this type of process, in gamma decay process, the radioactive element not emit particle, it emit radiations that lie in gamma region. इस केस में आपके पास रेडिएशन इमिट करता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसकी रीजन आपके पास गैमा में होती है, बट इन दिस केस आपके पास पार्टिकल इमिट करता है ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डीके प्रोसेस. लेट्स सपोज वी हैव अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियाई that is unstable. It will be converted into stable nuclei by the emission of helium particle in order to get the stability. But in case of beta nuclei, beta decay, the nuclei that is unstable nuclei having atomic number greater than 83 converted into stable nuclei with the emission of either beta negative or beta positive particles. Beta negative are actually the electron and beta positive are actually the positron. During alpha decay process, the radioactive nuclei, unstable nuclei, let's suppose that is X nuclei having atomic number Z and atomic mass A, that will be converted into Y nuclei, that is daughter nuclei. In this case, the atomic number decreased by 2 unit, atomic mass decreased by 4 unit with the emission of alpha particle, and we get the stable nuclei. But in case of beta decay, either positron or electron emitted and we get the stable nuclei. Let's suppose if the positron will be emitted, the atomic mass will be decreased. If electron will be increased, atomic number will be decreased. If electron will be emitted, then atomic number will be increased. In this case, we can represent it as, let's suppose we have the alpha particle. Let's suppose we have first case, in case of beta emission, X element Z, atomic mass 1, that will be converted into Y. In this case, Z will be increased by 1 unit, atomic mass will remain same with the emission of beta decay particle. In case of beta positive decay, positive emitted, and continuity of alpha and beta decay will be calculated mathematically by using following relation. In case of alpha decay, the energy released during this process will be calculated by
the mass of parent nuclei, mathematical relation, that is the mass of parent nuclei minus the mass of daughter nuclei minus the mass of alpha particle. This energy will be calculated in mega electron volt. For this purpose we multiply the whole values by 930 1.75 mega electron volt. If the energy value, calculated energy value, will be greater than 0 or positive, then we can say during alpha decay process the energy released and it go to spontaneous process and it undergoes spontaneity, and this type of decay will be possible when a radioactive element converted into stable nuclei. But in case of beta decay, the energy calculated formula will be represented as the mass of parent nuclei minus daughter nuclei or minus the mass of beta positive or beta negative, mass of the electron or positron. अगर आपके पास बीटा नेगेटिव डिके होगा तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पुट वैल्यू करोगे, अगर आपके पास बीटा पॉजिटिव डिके होगा तब भी आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे, बट आप बीटा पॉजिटिव डिके बोलोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन ओनली द अल्फा डिके, देन वी मूव टुवर्ड द बीटा डिके. Alpha, during alpha decay, according to decay process, decay theory, a radioactive element having atomic number Z and atomic mass A disintegrate after the emission of alpha nuclei. So the atomic number of the element, X element, will be decreased by 2 unit and atomic mass will be decreased by 4 unit in daughter nuclei. That will be represented as plus alpha particles plus energy that is calculated. If energy value will be greater than 0, then it will be spontaneous process and the nuclei undergo alpha decay process. If energy will be less than 0, then nuclei don't undergo alpha decay process during disintegration. The best well known example of alpha decay process is decay of uranium into thorium. Uranium into thorium with the emission of alpha particle. The atomic number of uranium is 92, that is greater than 83, so it is radioactive element, undergo disintegration process. 238 its atomic mass. During alpha decay, the atomic number will be 92 minus 290, mass will be 234. The energy released will be calculated as, if this energy released value will be positive, then it's undergo alpha decay process. If it will be negative, then it's don't undergo अल्फा डिके प्रोसेस. तो आप किसी भी अल्फा डिके प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें और उसके बाद अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो देन यू कैन से दिस न्यूक्लियाई अंडरगो, दिस पेरेंट न्यूक्लियाई अंडरगो अल्फा डिके प्रोसेस. अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो तब आप कह सकते हो कि दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट डोंट अंडरगो डिके प्रोसेस ड्यूरिंग अल्फा मूड, कि ये आपके पास अल्फा डिके है. अगर आपको नहीं पता कि यूरेनियम अल्फा डिके होगा या यूरेनियम का बीटा डिके होगा, किस टाइप का डिके प्रोसेस होगा, तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. अगर इसकी पॉजिटिव आई तो देन दिस रूट विल बी ओके, अगर इसकी पॉजिटिव नहीं आई तो देन दिस रूट विल नॉट बी ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिसइंटीग्रेशन थ्योरी द स्पॉन्टेनिटी
of the radioactive process is a spontaneous process, and the spontaneity of the radioactive process will be occur when the mass of the parent nuclei will be greater than that of the mass of sum of the mass of daughter nuclei. So for this purpose we calculate the energy. The energy calculation will be equal to the mass of the parent nuclei. Mass of parent nuclei is, that is uranium nuclei, that will be equal to 238.05073 minus mass of the daughter nuclei, that is thorium, and plus alpha particles. दोनों के इसमें mass को माइनस करें 234.043 minus 4.0020603 multiply by 931.75. The answer will be equal to 4.28 mega electron volt. So this process is spontaneous process because energy value will be positive. In this case, in 4.28 mega electron volt energy will be released, and this nuclei undergo spontaneous process. Now we are going to discuss the next process, that is beta decay process. Beta decay process is somewhat conceptual process. बीटा डीके प्रोसेस को अगर आप डिफाइन करो तो आप ये कहते हो कि सच टाइप ऑफ डीके प्रोसेस इन विच आइदर electron or beta negative particle will be emitted or positron will be emitted when a radioactive element undergo disintegration process in order to get stability or stability zone area. So in beta decay process there are two type of possibility, either electron will be emitted or positron will be emitted. First step कि पहली बात तो आपके पास ये है, या तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या फिर पोजिट्रॉन इमिट होगा. If electron will be emitted, then the atomic mass of the element increase by 1 unit. So atomic number of the element increase by 1 unit, but atomic mass of the element remains same. So in this case, this decay process beta negative, it is also known as beta negative decay process. In this case, the type of decay process in which radioactive element undergo disintegration process and emit electron in order to get stability. In this case, the radioactive element, the atomic number of the radioactive element increase by 1 unit, and atomic mass will be remain same with the emission of electron. And in second process, beta positive process, the atomic beta positive decay, first of all the positron will be emitted, and in this case the atomic number decrease by 1 unit and atomic mass will remain same. Both are the spontaneous process. There are two type of beta decay process mainly, and third type is also present that I explain later. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस केस में आपके पास बीटा पॉजिटिव डिके होगा और किस केस में आपके पास बीटा नेगेटिव डिके होगा. अब बीटा नेगेटिव डिके में आपके पास क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बीटा नेगेटिव डिके. और बीटा पॉजिटिव डिके में आपके पास क्या हो रहा है कि आपका एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट कुछ इस तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है कि इसका एटॉमिक मैस तो सेम है बट इसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है बाय द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये दो पॉसिबिलिटीज जब होंगी तो आपके कंपाउंड क्या होगा कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट
converted into stable nuclei in order to get stability zone area. किस केस में आपके पास ये वाला डीके होगा और किस केस में आपके पास ये वाला डीके होगा, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. And this decay, how this decay process will be occur, so it is very important process. There are two types, mostly two ways, and third way is also present. I explain later. First way is beta negative way and second way is beta positive way decay process. First of all, अगर आप explain करो तो बीटा नेगेटिव केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी और बीटा पॉजिटिव केस में आपके पास पॉजिट्रॉन की इमिशन होगी. बीटा नेगेटिव के केस में आप केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की इमिशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो E1 नेगेटिव 0 और बीटा पॉजिटिव डिके में ड्यूरिंग राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो 1+1 डिके, या फिर आप सिंपल बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके कहते हो. इस केस में बीटा नेगेटिव केस में आपके पास होता क्या है और ये सिचुएशन आपके पास कब क्रिएट होती है. एज वी नो दैट कि जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई के, तो देन आपके पास क्या होती है, अनस्टेबिलिटी गेन होती है. वो इस स्टेबिलिटी दे आर कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल because they don't follow the stability, they don't lie the stability zone area. इस केस में आपके पास क्या होगी, इस सिचुएशन में ये आपके पास स्टेबिलिटी जोन एरिया है, दैट इज द स्टेबिलिटी लाइन. अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो आपके पास ये एलिमेंट यहाँ लाई करेंगे, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इस केस में आपके पास एलिमेंट यहाँ लाई करेंगे. तो वी कैन से कि एट दिस सिचुएशन, एट दिस केस the number of neutron will be increases and this situation the number of proton will be increases. अब आपके पास दो सिचुएशन है, या तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा या न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा जब आपके पास कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी रहेगा, स्टेबल अनस्टेबल होगा. और अगर इस केस को आप थोड़ा सा एग्जांपल देखें कि क्यों आपके पास अनस्टेबिलिटी गेन करती है, अगर आप रिकॉल करो कंसेप्ट को, बिकॉज these two type of particle proton and neutron are actually fermions and they follow the Fermi-Dirac statistic. And according to Pauli exclusion rule, these two type of fermions, that is elementary fermion, never exist in same energy level. तो आपके पास क्या सिचुएशन बन सकती है, आपके पास दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे. आपने ये डिसाइड करना है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो देन आपका न्यूक्लियस किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करेगा, को बीटा नेगेटिव डीके होगा, ये बीटा पॉजिटिव डीके होगा, या फिर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो तो बीटा नेगेटिव डीके होगा, ये बीटा पॉजिटिव डीके होगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो इस केस के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से रिकॉल करना होगा क्योंकि कंसेप्ट को, बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर fermions and they follow Fermi-Dirac statistic, and according to Pauli exclusion rule, two proton or two neutron never exist in the same energy state. Let's suppose आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी x एलिमेंट है, x एलिमेंट that has atomic number is equal to 6 and atomic mass is equal to 7. In this case, the number of proton will be 6 because atomic Z value Z is equal to 6 and A is equal to 7. अगर आप देखो इस केस में आप प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्लैक सर्कल से और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लू से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो आप देखेंगे कि इस केस में ये आपके पास प्रोटॉन्स 2, 4, 6. ये आपके पास प्रोटॉन की सिचुएशन हो गई. बट अगर आप देखो कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होंगे,
अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो आपके पास फोर्थ एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, आपके न्यूट्रॉन 7 है, 6 2 4 6 7। अब जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। सिस्टम आपके पास अनस्टेबल है क्योंकि न्यूट्रॉन की नंबरिंग इंक्रीज हो गई है, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रॉन प्रेफर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रेफर करेगा कि वो अब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए और स्टेबिलिटी गेन करे। सॉरी, इसका अगर एटॉमिक नंबर 5 हो तो आपके पास वैकेंसी भी क्रिएट होनी चाहिए। इस तरह से आपके पास अगर हो, तो अगर आपके पास एटॉमिक नंबर इसका 5 होगा तो इस केस में ये क्या करेगा कि अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन और इस वैकेंसी को फिल कर देगा। अगर ये वैकेंसी फिलअप हो जाए तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में आपका ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जब ये एनर्जी लेवल आपके पास कट हो जाएगा तो फिर आपके न्यूट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जैसे कन्वर्ट होगा तो उस केस में आपके पास क्या रिलीज होगा, अल्फा पार्टिकल इन बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये प्रोटॉन रिलीज होगा। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास फर्स्ट सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज, देन न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। अब आपने देखना होगा कि न्यूट्रॉन की नंबरिंग के इंक्रीज होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। इमिशन किस पार्टिकल की होगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन की होगी या फिर आपके पास पॉजिट्रॉन की होगी। दैट्स विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह से हो जाए कि आपके एलिमेंट का, कंपाउंड का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, 7 हो जाए और मैस आपके पास 5 हो जाए, इस तरह का कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप हो, तो फिर आप देखो 2 4 6 ये आपके पास कौन सी, सॉरी 5 ये आपके पास है, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इस केस में प्रोटॉन क्या है आपके पास 2 4 6 एंड 7। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि ये 7th प्रोटॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे होगा, तो इस एनर्जी लेवल को कम करने की कोशिश करेगा, इसको इमिट करने की कोशिश करेगा और ये करेगा कि इसकी वैकेंसी को क्रिएट कर ले और ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। ये दीज सर्कल आर प्रोटॉन एंड दीज आर न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करेगी, ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अपने आप को न्यूट्रॉन में। तो आपके पास सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। अब हमने ये देखना है कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में क्या इमिट होगा, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आपके पास दो सिचुएशन क्रिएट हुई, एक आपके पास जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे, एक आपके पास ये सिचुएशन हुई कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर थे, एक आपके पास ये सिचुएशन हुई आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर थे। जब प्रोटॉन ग्रेटर थे तो आपके पास सिचुएशन इस तरह से हुई कि प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, और जब न्यूट्रॉन ग्रेटर थे तो आपके पास सिचुएशन इस तरह से है कि न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। अब ये देखना है कि इमिशन किस चीज़ की होगी, कि बीटा पार्टिकल की या गैमा पार्टिकल की, मीन के बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिट्रॉन की। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में आपके पास क्या डिके प्रोसेस में आपके पास क्या इमिट होगा, पॉजिट्रॉन। When proton will be converted into neutron, then positron will be emitted। और इस positron को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इक्वेशन में, 1 + 0, मीन के जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेस होंगे इस केस में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस केस में आपके पास लेस होंगे, तो आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट होगी। और अगर आपके पास इस तरह से हो कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हों सिस्टम में, प्रोटॉन डिक्रीज हों, तो आपके पास क्या कौन सी सिचुएशन होगी, आपके पास electron orbital negative quality. The proton and neutron are actually composed of quark. There are three type of quark that is present in proton and neutron. In case of proton, two up quark will be represented by U, and one down quark will be represented by D. तो आपके पास क्या होगी सिचुएशन, कुछ इस तरह से होगी। थ्री टाइप के क्वार्क्स आपस में क्या होंगे, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होंगी, 2 अप एंड 1 डी इन केस ऑफ प्रोटॉन। अब जो आपके पास ये क्वार्क होते हैं, इनकी स्पिन होती है आपकी, इसकी भी प्लस हाफ स्पिन होगी और ये इसकी भी प्लस हाफ स्पिन होगी। इनके ऊपर चार्ज वैल्यू होती है। जो आपके पास ये क्वार्क होता है, यू क्वार्क पॉजिटिव क्वार्क, इसकी वैल्यू आपके पास 2/3 होती है। और जो आपके पास डॉन क्वार्क होता है उसकी वैल्यू आपके पास U इज इक्वल टू, एंड डॉन क्वार्क की वैल्यू आपके पास -1/3 होती है। तो अब आप इसका अगर सम देखें तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर आपका क्या आएगा, सम पॉजिटिव आएगा, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इनके ऊपर, इसलिए प्रोटॉन के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एक्चुअली दीज आर कंपोज्ड ऑफ two type of particles, that is two type of quark particle, that is up quark and down quark. अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन जो आपके पास होंगे वो कंपोज होंगे सेकंड इस तरह से कि उस केस में आपके पास 2 डाउनवर्ड क्वार्क होते हैं और 1 अपवर्ड होता है, यू अपवर्ड 1 एंड 2 डाउनवर्ड। ये क्वार्क से कंपोज होता है आपका न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के केस में आपका टोटल चार्ज क्या है, 0 है। हम तो ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल, एक्चुअली दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज ओवरऑल इनका 0 होता है। बट इनकी अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी मौजूद है। अगर आपके पास 2 डाउनवर्ड क्वार्क है तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 -1/3 प्लस 2/3, ओवरऑल आपके पास चार्ज 0। सो न्यूट्रॉन का आप मैस एक्सप्रेस करते हो, चार्ज उसका 0 करते हो, ओवरऑल आपका चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन इनकी एक्चुअल कंपोजिशन देखी जाए तो इसके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। अब आपके पास जो प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है और पॉजिट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास ये जो क्वार्क है फर्दर ये कंपोज होते हैं, इनमें पार्टिकल्स की इमिशन, 2 टाइप के पार्टिकल की इमिशन होती है, एक पॉजिट्रॉन की इमिशन होती है और न्यूट्रॉनों की इमिशन होती है, और इस केस में आपके एंटी न्यूट्रॉनों की इमिशन होती है। कैसे इमिशन होती है, अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उस केस में ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। जब ये सिस्टम अनस्टेबल होगा तो इसका एक डाउनवर्ड क्वार्क क्या करेगा, टेंड टू कन्वर्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी हाई, देन क्या होगा कि आपके पास अपवर्ड क्वार्क सिस्टम अनस्टेबल होगा, आपका अपवर्ड क्वार्क कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला डाउनवर्ड क्वार्क में। जब ये वाला अपवर्ड क्वार्क डाउनवर्ड में कन्वर्ट होगा तो आपकी सिचुएशन इस तरह से होगी। अब ये प्रोटॉन नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन प्रोसेस आपके पास 2 टाइप ऑफ पार्टिकल रिलीज होंगे। एक तो आपके पास जब अपवर्ड डाउन में कन्वर्ट होगा एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा, और दूसरा आपके पास न्यूट्रॉनो इमिट होगा। न्यूट्रॉनो इज अ पार्टिकल, वो आपके पास इमिट होगा, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू और से। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर आपके पास अपवर्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉनो एंड ये आपके पास पॉजिट्रॉन ये मिलेंगे तो अपवर्ड क्वार्क बन जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज है, स्टेबल सिस्टम हाई, सिस्टम की स्टेबिलिटी लो है, एनर्जी हाई पे है, अनस्टेबल है, और उस केस में आपके पास ये इसमें फौरन से कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन हो कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाई हों, या आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोसेस होगा, या आपके न्यूक्लियस के शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही ये शेल के पॉजिट्रॉन,
तो अब जब आपके पास न्यूक्लियस का नंबर न्यूट्रॉन हाई होगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये डाउनवर्ड क्वार्क, वन डाउनवर्ड क्वार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू अपवर्ड क्वार्क। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा अपवर्ड क्वार्क में तो ये सिचुएशन हो गई कि आप दो अपवर्ड वन डाउनवर्ड इस तरह से हो गया, क्योंकि ये भी आप क्या बन गया अप, तो ये आपके पास ये कन्वर्जन प्रोटॉन में हो जाएगी। अब इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपके पास एंटी न्यूट्रॉनो, इसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करोगे, और उसके बाद आपके पास विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, इस केस में आपका न्यूट्रॉन बना था प्रोटॉन की कन्वर्जन में, इस केस में आपके पास न्यूट्रॉन बना था, और इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका प्रोडक्ट प्रोटॉन होगा, मीन के प्रोटॉन की कन्वर्जन होगी, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो पार्टिकल, और इस डीके प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, बीटा नेगेटिव डीके, और इस केस को आप बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके आपकी टू वेज में होती है, एक तो आपका ये वेज है, सेकंड आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज टू वेज आई एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस आल्सो। तो आपके पास ये वाली सिचुएशन होगी, और इसी वजह से आपके बीटा डीके एक्चुअली न्यूट्रॉन डीके होता है, बीटा नेगेटिव डीके एक्चुअली न्यूट्रॉन डीके होता है, और बीटा पॉजिटिव डीके एक्चुअली प्रोटॉन डीके होता है। तो आप प्रोटॉन डीके प्रोसेस भी बोल सकते हो, प्रोटॉन डीके प्रोसेस भी बोल सकते हो। इसकी एग्जांपल्स अब हम कर लेते हैं बीटा पॉजिटिव की और बीटा नेगेटिव की। अब बीटा पॉजिटिव के केस में आपके पास क्या होगा कि आपकी इक्वेशन क्या थी कि आप अगर इक्वेशन प्रिसाइसली लिखें तो आपके पास ये होगा कि कोई एक्स एलिमेंट है, ए जी उसका एटॉमिक नंबर, ए उसका एटॉमिक मास, दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू वाई डॉटर एलिमेंट, जी प्लस वन, ए प्लस जी माइनस वन इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आपने मैंने लिखा था ऊपर, तो जी माइनस वन प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, अब इसको आप बीटा पॉजिटिव भी कह सकते हो, बीटा पॉजिटिव लिख लें, पॉजिट्रॉन लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है जैसे भी लिखें, और प्लस आपके पास ये पार्टिकल, अगर आप, और सम टाइम हम ये नहीं लिखते नो प्रॉब्लम, अगर आप ना लिखें तो इट्स ओके, एंटी न्यूट्रॉन। और इस केस में आपके पास क्या होगा कि एक्स, इसमें एटॉमिक नंबर आपका डिक्रीज होगा, इस केस में आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ए जी कन्वर्टेड इनटू वाई जी प्लस वन, ए प्लस बीटा नेगेटिव प्लस म्यू, ये आपके पास क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी इस केस में। अब आप इनकी एग्जांपल्स अगर देखें तो वो बीटा नेगेटिव डीके में आपके पास जो वेल नोन एग्जांपल आती है वो आपके पास कौन सी आती है, थोरियम की, थोरियम विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटेक्टिनियम, और एनर्जी कैलकुलेशन अगर आप करें तो इसकी कर सकते हैं 92 238, दोनों प्रोसेस आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं, 234 और इस केस में 91, इस केस में आपके एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन, तो प्लस बीटा नेगेटिव, ये आपका केस हो गया। इस केस में आपकी एग्जांपल होगी बीटा नेगेटिव के केस में। अब बीटा नेगेटिव के केस में इसकी एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू एम पी माइनस एम डी माइनस बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव आप करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन आप लिखें, मल्टीप्लाई बाय 931.75, तो आप इन सब वैल्यू को पुट करें तो आपके पास 234.0596 माइनस 234.001 माइनस 0.00549 मल्टीप्लाई बाय 931.75, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 39.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि इस केस में आपके पास ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके की बात करते हैं, ये तो नेगेटिव आपके पास हो गया। पॉजिटिव की अगर आप एग्जांपल लो तो आपके पास वेल नोन एग्जांपल आती है किस केस में, बीटा पॉजिटिव के केस में
बेरिलियम की। बेरिलियम अगर आप देखो तो उसका एटॉमिक नंबर 7, बेरिलियम के आइसोटोप एटॉमिक नंबर 7 और मैस एटॉमिक नंबर 4 मैस 7। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस केस में क्या होंगे, लेस होंगे, 4 9 7 -4 इज इक्वल टू 3। प्रोटॉन इंक्रीज है, बीटा पॉजिटिव डीके होगा। अब इस केस में जब इसका पॉजिटिव डीके होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेरिलियम के आइसोटोप में। इसमें आपके पास 5 और 7 प्लस पॉजिटिव, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके की ये नेक्स्ट मूड है, ये तो फर्स्ट मूड था जिसमें आप इमिट कर देते थे। इसका नेक्स्ट मूड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर मूड, यानी कि बीटा पॉजिटिव जिन प्रोटॉन जिन एलिमेंट्स का आपके पास एटॉमिक प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीज हो, तो इस केस में एक और पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, जैसा कि आपके बेरिलियम के एटॉमिक न्यूक्लियाई में होती है कि आपके पास बेरिलियम के एटॉमिक न्यूक्लियाई में आपके 4 आपके प्रोटॉन हैं और 7 आपके पास न्यूट्रॉन है। इन टोटल एटॉमिक मास आपके पास क्या है, 7 है। अब ये क्या करेगा कि ये 4 प्रोटॉन अपने आउटर मोस्ट शेल के शेल से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अब बीटा पॉजिटिव डीके नहीं करेगा, बल्कि ये इस तरह से करेगा। इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर लेगा। जब एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज होगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियाई में, और जो आपके पास स्टेबल होगा, और इस तरह से इसको के कैप्चर करेंगे। और एल कैप्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी आपकी के की होती है कि जब आपके पास प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज डिक्रीज होंगे, न्यूट्रॉन डिक्रीज हो, प्रोटॉन इंक्रीज हो, वो सिचुएशन हो, तो उस केस में आपके पास होता क्या है कि आपके प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आपका न्यूक्लियस के शेल से, उसके शेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके नेक्स्ट न्यूक्लियाई में भी कन्वर्ट हो जाता है, या बीटा पॉजिटिव डीके भी कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट लास्ट डीके इज गैमा डीके। गैमा डीके में आपको ना पॉलिटिकल इमिट होता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इसमें जस्ट इमिट होती है रेडिएशंस क्यों इमिट होती हैं। अब आप देखिए ना, इस केस में आपके पास ये होगा कि आपके पास अनस्टेबिलिटी कब होगी, जब आपके अगर इधर मैं 2 प्रोटॉन और इधर आपके पास 2 न्यूट्रॉन लिख दूं, तो अब एक मेरे पास न्यूट्रॉन के एक्सेस में ये स्टेबल अनस्टेबल है सिस्टम, तो इस केस में क्या होगा कि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, या इसको मैं 1 कर दूं, इस तरह से भी इसमें स्पेस होनी चाहिए, उस तरह का न्यूक्लियाई होगा, तब ही होगा, ऐसा अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज इसमें क्या होगा, फ्यूजन प्रोसेस, अल्फा डीके प्रोसेस होगा, बीटा डीके नहीं होगा। तो अब आप देखें, ये वाला प्रोटॉन आपके पास एक्सेस में था, तो ये इसमें आएगा, तो इसमें आने के लिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा, तो आप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक शेल थ्योरी, न्यूक्लियस की भी शेल थ्योरी है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपके एलिमेंट्स जो हैं, ये फर्मियॉन्स, ये एनर्जी लेवल में क्या है, प्लेस है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सपेरिमेंट मोड। ये आपका हाई एनर्जी लेवल E2 और ये 1, E2 से E1 के दौरान जब आपका कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाता है, तो उस केस में आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी रिलीज रेडिएशन क्या होती है, किस रीजन में लाई करती हैं, गैमा रीजन में लाई करती हैं दिस एनर्जी रिलीज। और ऐसा डीके, और इसको आप क्या कहते हो, डीके प्रोसेस इन विच एनर्जी विल बी द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गैमा रेज इज नोन एज गैमा डीके। तो ये आपका हर प्रोसेस में होता है, बीटा में हो, अल्फा में हो, गैमा रेडिएशन आपकी इमिट होती रहती है लॉन्ग। तो अब आपका ये न्यूक्लियाई जब इधर जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर लेट्स सपोज आपकी ये आपके पास 1.73 थी और ये 1.33 है, तो आपकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके 1.73 माइनस 1.33 होगी, और ये आपके पास क्या होंगी, गैमा रेस इस केस में इमिट होंगी। गैमा रेस में आपके पास और कोई भी
किसी भी टाइप की कन्वर्जन नहीं होती, किसी भी टाइप का डिके प्रोसेस नहीं होता। एक जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जब वो अपना एनर्जी शेल रिलीज करता है, लीव करता है, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप गैमा रे की डिके कहते हो। और ये आपके पास रेडिएशन होती है, ये पार्टिकल्स नहीं होते। और इन रेडिएशन की जो वेवलेंथ डिटरमाइन की गई एट दैट टाइम, ने कहा कि लेट्स सपोज ये कंफर्म करने के लिए कि आइदर इट बिलोंग टू गैमा रीजन आर नॉट, जब ये डिस्कवरी हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, अगर आप ये रिलेशन यूज करें तो आपके पास होगा क्या कि आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप क्या करोगे कि आपको ये होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी लेट्स सपोज आपकी पार्टिकल की थी जो इमिट हो रहा था, तो उसकी लैम्डा क्या होगी, तो उसकी लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर 1 me। तो अगर पुट वैल्यू करें आप इसकी एच सी की, तो आपके पास क्या होगा कि सी 6.6 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 प्लॉन्क्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 over 1 me। तो दैट्स विल बी इक्वल टू द लैम्डा वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 0. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 12 नैनोमीटर। ये उन्होंने कहा कि अगर सपोज आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है एनर्जी, तो उस केस में उस पार्टिकल की वेवलेंथ, ये एनर्जी रिलीज की पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कि 0.01 होनी चाहिए। और ये किस रीजन में आती थी, गैमा रीजन में। अगर ये ऐसा सीन होता है तो आप कहोगे कि ये रेडिएशन जो इमिट हुई वो क्या हुई, गैमा रीजन में हुई। तो जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व